So very good afternoon, one and all. So let us today the topic of our discussion is concept of charge and static electricity. We have already started this second unit, and in the last lecture we discussed about the atomic structure, right? Nucleus is there at the center, and surrounding that different electrons are revolving in a particular orbits, right? So that we studied. Okay, now the next topic, let us highlight on what exactly the electric charge is there, right? How do electric charges exert forces on each other, right? If the two electric charges are there, then how that charges exerts force on each other, that also we'll discuss. Okay, so before that, what does the exert mean, that we'll see. Okay, we are exerting the force on different and different things every day in our daily life also. Okay, so what exactly is the exerting of the force, or what does mean the exert? Okay, so exert simply means that to apply or to use. Okay, so exert means what? Exert simply it means to apply or use a certain thing. We use to apply the force. We are exerting the force means what? We are applying that force. We are applying force. We are lifting a certain object. Means we are applying force to lift that object from one place to another place. Similarly, we are pushing or pulling certain things. That time we are applying the force on that. Okay, so exert means to apply or to use. Then turn to the said partner and define force. What is the force? A force is either to push or pull. Okay, suppose we have to open the door. That time what we will do? In number of times you experience that on a certain doors there is in return either push or pull. ऐसा लिखा हुआ रहता है डोर के ऊपर. So we are pushing that door either towards our side, or we are pushing to the opposite side, or pulling that door towards ourselves, right? We are pulling or pushing means what? We are simply exerting the force. We are applying the force, right, on that particular door, right? And that time the door gets open or closes. So force is nothing but is either pushing or pulling something. Okay, so now number of times you have experienced that have when you reach out to open or close the door and receive a shock from that door knob. बराबर कि नहीं? हमें बहुत टाइम पे ऐसा शॉक लगता है. So what exactly is that? आपने एक्सपीरियंस किया होगा. Also sometimes when you were sitting on a chair, plastic chair, okay, और थोड़ी देर बाद कोई यदि आपके पास आता है और सडनली वो सर तुमचा आवाज कट होतोय. Okay, I think the internet problem may be there. Okay, now am I audible? Am I audible? आवाज बरोबर नाही सर, सर्वांनाच होतोय. सर नेटवर्क प्रॉब्लेम. बरोबर. एक मिनिट. There might be problem on the net, but I have the full range here. Okay, अभी आ रहा है आवाज? अभी आ रहा है आवाज? Yes sir. Okay. So, Yes sir. whenever we are touching such a objects, or even when you are sitting on a chair, plastic chair, okay, और कोई आपके बाजू में आ जाता है और सडनली हमें टच करता है, तो that time also you are experiencing the shock from that particular person or from the chair. Okay, so why such happen? Okay, ऐसा क्यों होता है? So in order to understand why this happens, you have to understand. You have to understand the electric charges. हमें क्या अंडरस्टैंड करना होगा? ये अंडरस्टैंड करने के लिए व्हाट एग्जैक्टली आर द इलेक्ट्रिक चार्जेस, तो इसका वजह क्या हो सकता है? तो आई थिंक द रीजन बिहाइंड दैट शॉक इज द इलेक्ट्रिक चार्जेस. रीजन बिहाइंड दैट शॉक इज इलेक्ट्रिक चार्जेस. कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया ऐसा शॉक? चेयर पे बैठे रहते हैं,
तो शॉक लगता है कभी कभी, कोई किसी ने टच किया तो। हुआ है ऐसा किसी के साथ? नहीं तो डोर में आपको हाथ लगाते हैं, सडनली शॉक लगता है, ऐसा कभी हुआ है? इट्स मोमेंटरीली। हुआ है किसी के साथ? नहीं हुआ है। एक्सपीरियंस करके देखो। चेयर पे बैठो, वियरिंग द शूज, ओके, और चेयर पे थोड़ा देर बैठे रहो और बाद में किसी को टच करने के लिए बोलो, ओके। और प्लास्टिक चेयर चाहिए वो, ओके। you will experience the shock that time. So in order to understand this fact, okay, why this is happening, you must understand the electric charges. What exactly is the electric charge, ये हमें पहले समझना पड़ेगा, then and only then हमें इसका आंसर मिलेगा। So हमें पता है क्या कि all matters is made up of very minute particles, okay। और minute particles को क्या बोलते हैं हम? atoms, okay। ये हमने कल भी देख लिया, okay। minute particle को हम क्या बोलते हैं? atoms। and atoms are made of even very smaller particles. Atoms are made of very small and small particles, and that are called as protons, neutrons and electrons, okay। atoms किस चीज से बने हैं? हमने देखा उनका स्ट्रक्चर एटम का कल। एटम के अंदर क्या क्या है? प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है और इलेक्ट्रॉन्स है। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में है। Protons are positively charged, neutrons are electrically neutral, and electrons are revolving around the nucleus in a certain fixed orbits, and that electrons are negatively charged, ये हमने देखा है, okay। Now ये जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस में है, so न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स मेक अप द सेंटर ऑफ द एटम्स। ये क्या करते हैं? इस एटम के सेंटर के में बीच में रहते हैं, एंड मेक द न्यूक्लियस, दैट इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियस, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड आउटसाइड द न्यूक्लियस, ओके। तो इलेक्ट्रॉन्स आउटसाइड द न्यूक्लियस रहते हैं, लाइक दिस। हियर इज द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग इन अ ऑर्बिट, डिफरेंट ऑर्बिट्स, एंड दीज आर द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एट द सेंटर, राइट, इन अ न्यूक्लियस, okay। ये प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर एट द सेंटर, and that is in the nucleus, while these electrons are revolving into different orbits around these protons and neutrons, okay। तो ये हम पढ़ चुके हैं, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। अभी ये protons and electrons are charged particles और neutrons are not, ये भी हमने देख लिया है। देखिए ये protons and neutrons है, they are protons at the center, पॉजिटिवली चार्ज है। न्यूट्रॉन जो है कि उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, और ये ऑर्बिट्स में जो इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन में चार्ज है, लेकिन उनके ऊपर कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। तो जितना नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन में है, उतना ही पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स में है, और दे आर बैलेंसिंग ईच अदर। नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज आर बीइंग बैलेंस्ड, ओके। प्रोटॉन्स हैव द पॉजिटिव चार्ज एट द सेंटर ऑफ, and electrons have the negative charge in rotating in a fixed orbit around the nucleus. So charge is, what exactly is the charge? Okay, charge is a property. It is nothing but a property. An object can have a positive charge, a negative charge, or no charge. The object may have charge. It may be that charge may be positive, that charge may be negative, okay, or certain object doesn't have any charge, बराबर है, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज होगा भी नहीं। so it depends, charge is a physical property, ये फिजिकल प्रॉपर्टी है। किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा, और किसी के ऊपर कोई चार्ज नहीं रहेगा, ओके। सो दैट इज द सर आवाज ब्रेक होतोय तुमचा। आवाज नहीं येत आहे, आई थिंक इंटरनेट प्रॉब्लेम इज देयर, ब्रेक होतोय तर तुमचा आवाज ब्रेक होतोय। हो का? आता येतोय का तुम्हाला? नाउ एम आई ऑडिबल नाउ? आमच्याकडे राउटर, आमच्याकडे नेट इश्यू येतच नाही, आमच्याकडे राउटर येतो। हो ओके। सो द चार्ज ऑब्जेक्ट, ये जो चार्ज रहते हैं ऑब्जेक्ट्स, वो एक दैट एक्सर्ट्स द फोर्स, क्योंकि उनके ऊपर चार्ज रहता है, ओके। पुश और पुल on other charged objects,
क्या करते हैं ये चार्ज ऑब्जेक्ट? आइदर पुश करते हैं और पुल करते हैं। चार्ज ऑब्जेक्ट एक्सर्ट्स अ फोर्स, चार्ज ऑब्जेक्ट जो रहते हैं वो क्या करते हैं? दैट एक्सर्ट्स अ फोर्स, आइदर दे पुश और पुल सर ऑन नाही अदर तुमचा चार्ज सर ऑब्जेक्ट। आवाज नाही येतोय. आवाज सर नाही येत, आवाज break नाही होतोय. येत, सर आवाज नाही येत. आप सर, रेंज में आ गिटार जाओ, वही थोड़ा रेंज का प्रॉब्लम होगा। सर रेंज मध्येच आहे आम्ही. सर आमच्या फुल रेंज असते. तर आमचा फुल रेंज असते. सर, यहाँ आमच्या पे भी तो 5G full range है मेरी। हमारी पण अभी आ रहा है आवाज? आवाजच क्लिअर नाही येते सर. क्लिअर नाही येत क्लियर नहीं येता है? सर, मध्ये ब्रेक सगळ्यांचं होतोय ना मग एकाच. ओके ओके ठीक है। अभी देखो थोड़ा, अभी आएगा, थोड़ा जोर से बोलता हूँ मैं। तो ये जो चार्ज ऑब्जेक्ट है, नहीं आ रहा है सर, कट हो रहा है आपका. अभी मैं बात किया ही नहीं। नाही आ रहा है. नॉट अवेलेबल युअर साऊंड सर. हेलो, अभी आ रहा है आवाज? Am I audible now? हा आता येतोय. ओके वेरी गुड। कट होतोय सर मध्ये. चार्ज ऑब्जेक्ट जो है वो क्या करते हैं? एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, आइदर पुशिंग और पुलिंग, एंड दैट डिपेंड्स, आइदर पुशिंग एक्शन में भी देयर, पुलिंग एक्शन में भी देयर, ओके, एंड दैट डिपेंड ऑन व्हाट? द चार्ज ऑन देम, ओके, चार्ज ऑन देम। तो चार्ज पॉजिटिव है, नेगेटिव है, चार्जेस एक्सर्ट दी फोर्सेस। हमने देखा है क्या? अपोजिट चार्जेस, यदि अपोजिट चार्जेस एक दूसरे के नजदीक आए तो वो एक दूसरे के पास आते हैं, दे अट्रैक्ट ईच अदर। इफ सेम चार्जेस एक दूसरे के नजदीक आए तो क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, एक दूसरे के दूर जाते हैं। रिपीट कर. तो एक दूसरे से दूर जाते हैं बोले तो क्या, दूर जाते समय ये क्या कर रहे हैं? ये इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, ओके। और फोर्स कैसे है? इसके ऊपर यदि फोर्स एक्सर्ट करेगा तो इससे दूर जाएगा, और ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के साथ आया, नजदीक आया, तो ये क्या करते हैं? देयर इज आल्सो द एक्सर्टिंग फोर्स, बट दैट इज द अट्रैक्टिव फोर्स, दैट फोर्स इज अट्रैक्टिव, ओके। इनका डायरेक्शन जो रहेगा तो अट्रैक्टिव, एक दूसरे की तरफ रहेगा, ये एक दूसरे से अपोजिट रहेगा। So it is repelling action, and this is the attracting action in opposite charges. So depending on the nature of the charge that objects have, right? So there is either pulling or pushing action, or attracting or repelling of the action will be there. So objects that have the same charge repel each other. So each object exerts a force on the other object, and these forces push that objects apart. तो ये पुशिंग एक्शन कैसी होती है? एक हम जब कोई डोर पुश करते हैं, हम जब डोर पुश करते हैं, बराबर, तो दैट टाइम व्हाट हैपन? दूर जाता है डोर, बराबर कि नहीं? तो ईच ऑब्जेक्ट एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन द अदर ऑब्जेक्ट्स, सो दीज फोर्सेस पुश द ऑब्जेक्ट्स अपार्ट। और सिमिलर चार्जेस जब नजदीक आते हैं, ऑब्जेक्ट दैट हैव अपोजिट चार्जेस are attracted to each other, and each object exerts a force on the other object, so these forces pull the objects together. तो opposite charges जब नजदीक आते हैं, the objects that have the opposite charges वो जब नजदीक आते हैं तो वो एक दूसरे के पास आते हैं। so each object that time exerts a force on each other. ये नेगेटिव चार्ज जो है, ये ऑब्जेक्ट है नेगेटिव चार्ज, और द ऑब्जेक्ट है पॉजिटिव चार्ज, वो एक दूसरे की तरफ खींचने का फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये एक दूसरे की तरफ खींचे जाएंगे, दैट इज अट्रैक्टिव फोर्स, ओके। सो अभी हमने एक एक्सपेरिमेंट हम स्कूल लेवल से करते आए हैं, बराबर। हम वी आर गोइंग टू स्टडी हियर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ओके। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हम देख रहे हैं अभी, ओके। तो वैक्स है, ओके, और एक वूल क्लॉथ है, ओके। वैक्स और वूल क्लॉथ यदि हम नजदीक लाए तो क्या होता है? देयर विल बी attraction, because wax has the property, physical property of having the negative charge, while the wool cloth have the positive charges. So whenever they come in contact with each other, that time attractive force will be there,
attractive force will be there among them. So in atoms, protons are positively charged, हमें पता है, electrons are negatively charged, ये भी हम सीख चुके हैं. So because protons and electrons have opposite charges, they are attracted to each other. So without this attraction, electrons would fly away from the nucleus of an atom. So you remember, ये हमने जो एटॉमिक स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है, ये फिगर की तरफ आप एक बार देखिए. एटॉमिक स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है. प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, और देयर इज ऑलवेज द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस मीन अपोजिट चार्जेस. बराबर कि नहीं? अपोजिट में attraction रहता है. So because of protons and neutrons, electrons have opposite charges, they are attracted to each other, वो एक दूसरे की तरफ खींचे जाते हैं. And without this attraction, यदि attraction नहीं रहा तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन जो है ये तो किधर भी चले जाएंगे, भाग जाएंगे न्यूक्लियस से दूर. ओके, they will fly away from the nucleus of an atom. एटम को छोड़ के चले जाएंगे. लेकिन there is the bounding. Each electron is bounded, right, with that atom. Atom के साथ bounded means what? There is the attractive force between the nucleus, that is between the protons. Okay, means there is the attractive force amongst protons and electrons, and that force, attractive force, वो उनको bound करके रखता है, बांध के रखता है. बराबर? So it is possible only because they have the opposite charges. अपोजिट चार्जेस की वजह से ये अट्रैक्टिव फोर्स रहता है. सो अट्रैक्ट एंड रिपेल एक्टिविटी ये वही है. अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट व्हाइल सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर. सो मेक एन इलेक्ट्रोस्कोप. अभी हमने जब इलेक्ट्रोस्कोप यदि देखा, राइट, व्हाट इज इट? इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू सी इफ एन ऑब्जेक्ट इज चार्ज्ड. हाउएवर इट कैन नॉट show whether the charge is positive or negative. खाली वो चार्ज को दिखाता है, लेकिन वो इलेक्ट्रोस्कोप में हमें पता नहीं चलता कि ये पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है. ओके, लेकिन खाली चार्ज दिखता है. सो द फोर्स बिटवीन चार्ज्ड ऑब्जेक्ट इज एन इलेक्ट्रिक फोर्स. व्हाट इज इलेक्ट्रिक फोर्स? द फोर्स बिटवीन द चार्ज्ड ऑब्जेक्ट. दो चार्ज पार्टिकल्स है, उनके बीच में जो फोर्स रहेगा, वो फोर्स को what we will call, it is an electric force. So the greater the charges are there, the greater the electric force between them. The greater the charges, the greater is the electric force in between the objects. The closer together the charges, और जितने नजदीक होंगे charges, the greater the electric force between them. तो ऑब्जेक्ट, चार्ज ऑब्जेक्ट हम जितने नजदीक रखेंगे उतना इलेक्ट्रिक फोर्स उनके बीच में ज्यादा रहेगा. बराबर? जैसे जैसे वो पार्टिकल्स और ऑब्जेक्ट को हम दूर दूर करते जाएंगे, फोर्स बिटवीन देम वो भी वीक कम होते जाएगा. ओके, सो एंड चार्ज का एम्पलीट्यूड, द ग्रेटर द चार्जेस, नंबर ऑफ चार्जेस यदि ज्यादा है तो वो भी इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा बढ़ते जाता है. एंड दैट इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिक फोर्स, चार्ज between charged object. The total force between the charged object is the electric force. Now the charged things have an electric field around them. अभी देखिए, ये एक पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है. ये पॉजिटिवली चार्ज दूसरे पॉजिटिवली चार्ज के पास रखा है, ये नेगेटिवली चार्ज एक अपोजिट चार्ज पॉजिटिव के पास रखा है. अभी ये चार्ज ऑब्जेक्ट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड of another charge object is attracted or repelled by the electric force acting on this. अभी ये दो चार्ज यदि हमने एक दूसरे के फील्ड के अंदर रख दिए, अब ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके फील्ड के अंदर यदि मैंने दूसरा पॉजिटिव चार्ज लाया, so by the law of the repulsion what happened? Similar charges repel each other. बराबर ना? तो ये रिपेल होगा, राइट. और यहाँ पे अपोजिट चार्जेस है, तो ये जो चार्ज लाइन आप देख रहे हैं, तो ये एक दूसरे की तरफ जाएंगे. ओके, सो हियर विल बी द अट्रैक्शन फोर्स, हियर विल बी रिपल्शन फोर्स. So the charge object in the electric field of another charge object is either attracted or repelled by the electric force acting on it, and that attraction or repulsion, it totally depends upon whether that charges are
similar or opposite. If similar are there, repulsion will be there. If opposite charges are there, attraction will be there. Okay, so it is the repulsion and attraction. The same thing is shown here. इलेक्ट्रिक चार्ज, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज है, ये दो ऑब्जेक्ट्स है, ओके, उनके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स है, दोनों को बीच में फोर्स है, लेकिन ये जो फोर्स है इट इज अट्रैक्टिव फोर्स एंड ये जो फोर्स है इट इज रिपल्सिव फोर्स. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये कंबाइंड, बराबर, ये इनका है इलेक्ट्रिक फील्ड. So electricity is simply what? The presence and or flow of electric charges. What is electricity? It is either only the presence of the charge or the flow of the electric charges. That is nothing but the electricity. Okay, electricity is nothing but it is of charge. That charges may be stationary, hai present, hai bhai, or they are flowing. So that is nothing but the electricity. Now the atoms have equal numbers of protons and electrons. Because an atom's positive and negative charges cancel each other out, atoms do not have a charge. एटम को कोई चार्ज नहीं रहता है क्योंकि वो बैलेंस रहता है. क्या, जितना पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन का, उतना नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स में है, तो उनका ओवरऑल इक्विवेलेंट चार्ज वो तो कैंसिल हो जाता है पॉजिटिव नेगेटिव के साथ, बराबर कि नहीं, बैलेंस रहता है. मींस एटम्स डज नॉट हैव एनी चार्ज, बट हु हैज द चार्ज? इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन द एटम हैव द चार्जेस. सो यू रिमेंबर दिस थिंग, electrons and protons have the charges. तो यहाँ पे देखिए ये प्रोटॉन्स है, 6 प्रोटॉन्स है, 6 न्यूट्रॉन्स है. ये एटम के अंदर 6 प्रोटॉन्स है और 6 न्यूट्रॉन्स है. ये कार्बन का एटम है. और बाहर देखिए कितने इलेक्ट्रॉन्स है. ये फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, सेकंड ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं. तो ओवरऑल 6 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, 4 + 2 6 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर. So 6 negative charges are there and 6 positive charges are there inside the nucleus, that is the protons. So ये एक दूसरे को जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव है, तो बैलेंस है. Means this overall atom doesn't have any charge, but protons and electrons have the charge. So how can anything made of atoms be charged? तो हम ये एटम को चार्ज कैसे बोल सकते हैं भाई, बराबर कि नहीं? ये एटम को तो कोई चार्ज है ही नहीं, जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव चार्ज है. सो हाउ कैन एनीथिंग मेड ऑफ एटम्स बी चार्ज? एटम को हम चार्ज कैसे कर सकते हैं? सो व्हाट विल बी सॉल्यूशन ऑन दैट? तो कैसे होगा ये? तो चार्ज ऑब्जेक्ट होगा कैसे भाई? तो एन ऑब्जेक्ट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज. हो सकता है ना, हम ऑब्जेक्ट को पॉजिटिव चार्ज भी बोल सकते हैं, नेगेटिव चार्ज बोल सकते हैं. वो कैसे होगा फिर? So an object becomes positively charged. कब होगा वो? When it loses electrons. अभी देखिए ये जो कार्बन का हमने स्ट्रक्चर बताया है इधर, ये कार्बन है, पॉजिटिव चार्जेस 6 है, नेगेटिव चार्जेस 6 है. अभी ये कार्बन में से मैं यदि एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा, मीन्स if we lose this electron, if this carbon atom loses this electron, then what happens? There is the efficiency of 1 electron. Sorry, there is the deficiency of 1 electron in this carbon atom. So deficiency of 1 electron means what? Now, there will be more positive charges than the negative charges. Means this carbon atom momentarily becomes positively charged. समझ में आया? ये positively charged कब बनेगा? When I remove or when this atom loses 1 electron. That time ये कार्बन एटम में खाली 5 ही इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे. 5 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे तो क्या होगा? There will be deficiency of 2 electrons. Means it is more positive, right? 2 पॉजिटिव प्रोटॉन्स यहाँ पे ज्यादा है, पॉजिटिव चार्जेस, so it becomes positively charged. So losing of the
electrons, right? After losing the electrons, the object can become positive. Okay, initially it is neutral रहता है, electrically it is neutral है ये atom और object. कब? when number of protons and number of electrons are similar. वो न्यूट्रल है, लेकिन अभी मैं ये इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दिया, ओके, इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, लूज हो गया, लूजेज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो इसका नेगेटिव चार्ज कम हो गया, मींस नेगेटिव चार्ज कम हो गया मींस इट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, इसका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, सो दिस एटम इज नाउ कॉल्ड एज द पॉजिटिवली चार्ज. सिमिलरली हमें ऑब्जेक्ट नेगेटिवली चार्ज करना है, तो व्हेन दैट ऑब्जेक्ट विल बी नेगेटिवली चार्ज, सो एग्जैक्टली अपोजिट टू दिस, हमें यहाँ पे लूज किया इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे गेन करना है, ओके, सो व्हेन इट गेन्स द इलेक्ट्रॉन, व्हेन इट गेन्स द इलेक्ट्रॉन, दैट टाइम माय एटम विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज, सॉरी नेगेटिवली चार्ज. व्हेन इट गेन्स द इलेक्ट्रॉन, दैट टाइम माय एटम्स विल बिकम नेगेटिवली चार्ज. ओके, यहाँ पे ये देखिए ये नेगेटिवली चार्ज होगा. गेन मींस अभी ये देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 पॉजिटिव चार्ज है, और 1 2 3 4 5 6 नेगेटिव चार्ज है. ओके, 1 2 3 4 5 6, ओके, और ये सातवां मैंने इधर ला इधर से आया, ये भी इधर से आया, तो क्या होगा, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा. इट गेन्स द इलेक्ट्रॉन means it has the more negative charges than that of the protons, so ये negatively charge बन जाएगा. So when there is losing of the electrons, the object becomes positively charged, and when the object gains the electron, additional electron जब उसमें आ जाता है, that time it becomes negatively charged. So you remember this thing, okay, when the object is positively charged and when it is negatively charged, when losing action of electrons is there, that time it becomes negative positively charged, and when it gains the electron, that becomes is negatively charged. अभी हम देखते हैं, हमेशा बचपन से देखते आ रहे हैं हम, क्या, ब्लैक बोर्ड और डस्टर. when we are trying to understand the transfer of electrons, अभी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे होता है, इसका लाइव एग्जांपल है ये आपके पास. Okay, when we are trying to understand the transfer of electrons, think of a chalkboard and eraser. Okay, duster और chalk blackboard है. So how might this illustrate electron transfer? कैसे होता है ये, कैसा इलस्ट्रेशन होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का? तो इरेजर रिप्रेजेंट्स द नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट. ये जो डस्टर है इनके हाथ में, ओके, इट इज अ नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट. नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट मींस it has more electrons than that of the proton, okay, nucleus. तो इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, ये नेगेटिवली चार्ज है. नाउ द chalk particles represent electrons. chalk पार्टिकल जो है ब्लैक बोर्ड के ऊपर, वो इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करते हैं. एंड द क्लीन बोर्ड रिप्रेजेंट एन अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट. जब ये बोर्ड क्लीन रहता है, ओके, अभी यहाँ पे देखिए ये क्लीन है बोर्ड, यहाँ पे कोई व्हाइट पार्टिकल्स नहीं है, हाँ, यहाँ पे व्हाइट पार्टिकल्स है, लेकिन ये डस्टर में जब घुमाते ये क्लीन बोर्ड पे भी लाऊंगा, तब क्या होगा, यहाँ का पार्ट भी व्हाइट हो जाएगा. व्हाई सो फार? बिकॉज द डस्ट पार्टिकल्स, chalk particles from this duster, they are now representing the presence of electrons. तो वो चार्ज पार्टिकल्स, व्हाइट पार्टिकल्स ऑफ chalk, दे यहाँ पे ब्लैक क्लीन पार्ट पे आ जाएंगे, राइट? सो दैट इज द ट्रांसफर ऑफ द particles on the clean board, and that particle represent electrons. So electrons from this negatively charged particle are get transferred to this positively charged particles. और positively charged particle क्या है, हमारा बोर्ड है, बराबर. So this eraser, the chalk particles represent electrons and the clean board represent an uncharged object. तो uncharged object रहता है तो उसके ऊपर ही नेगेटिवली चार्ज चले जाते हैं. ओके, सो ये एक एग्जांपल दिया है, बराबर ना, कि हाउ दैट ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस. सो व्हेन द बोर्ड इज वाइप्ड बाय द इरेजर, देयर इज एन इलेक्ट्रॉन ट्रायल, सो दैट द chalk लीव्स बिहाइंड. ओके, ये chalk के पार्टिकल पीछे छोड़ देता है ये डस्टर, मींस देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ऑन द क्लीन बोर्ड.
the electrical charges, this is one worksheet here shown, electrical charges. Okay. Now let us move. Electrical charges जो है, if an object has more positive charges, यहाँ पे देखिए object have more positive charges and less negative charges, then it is electrical charge is called as positive charge. जब negative charges are more than that of the positive charge, then this object or this charge is called as the negative charge. Okay, when equal number of charges are there, positive 3 है, negative भी 3 है, that time it is electrically a neutral रहेगा. No charge, it is balanced charge है ये. Then electrical charge, यहाँ पे हमें लिखना है कितने इलेक्ट्रिकल चार्ज पॉजिटिव है, नेगेटिव है. यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 पॉजिटिव चार्ज है और 4 नेगेटिव चार्ज है. सो इट इज पॉजिटिवली चार्ज. ये दिस इज आल्सो पॉजिटिवली चार्ज. ये 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 पॉजिटिव चार्ज है. सो इट इज नेगेटिवली चार्ज. इट इज मोर पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस आर देयर नेगेटिव, सो इट इज नेगेटिवली चार्ज particle, right? So like this, depending on the positive and negative charges available there, right, that electrical charge may be positive or negative. Now here objects can be charged. हम object को charge कर सकते हैं. Okay, that can be charged when electrons are wiped from one object onto the another object. So ये friction हम जो करते हैं, ये बचपन से हम सीखते आ रहे हैं. Okay, हम खुद एक्सपीरियंस भी करते हैं. आप लोगों का जब बर्थडे रहता है तब क्या करते हैं आप लोग? बर्थडे के टाइम पे क्या करते हैं? बलून्स लाते हो वॉल पर और आप क्या करते हो? बलून्स को वॉल पर ग्लो करके कहाँ पे चिपकाते हो? वॉल पे, बराबर कि नहीं? वॉल पे कैसे चिपक जाते हैं? चिपकाते या नहीं चिपकाते वॉल पे? भिंतीवर आपण बलून चिपकवतो की नाही बर्थडेच्या दिवशी? आणि मग त्या भिंतीच्या खाली बसून छानपैकी तुम्ही केक कट करतात. आठवतंय? हो सर. आता तो बलून भिंतीला का चिपकत असेल? बलून डायरेक्ट बलूनला फुगवला आणि डायरेक्ट भिंतीला चिपकवला तो चिपकेल का? नाही चिपकत. तुम्ही काय करता? चिपकण्यासाठी तुमच्या केसांवर त्याला रब करतात, घासतात. बरोबर? केसांसोबत त्यांचं फ्रिक्शन होतं, घर्षण करतात आणि नंतर मग तो भिंतीवर चिपकवतात. बरोबर की नाही? घर्षण झाल्यानंतरच तो बलून भिंतीवर चिपकतो. सो द ऑब्जेक्ट्स कॅन बी चार्ज. तो व्हाट वी आर डूइंग, यू आर सिंपली चार्जिंग दैट बलून. चार्जिंग दैट बलून मीन्स सरफेस ऑफ दैट बलून. वो रबर का है तो उसको हम चार्ज करते हैं. चार्ज करते मीन्स व्हाट वी आर डूइंग, वी आर imparting the charges on the surface of the balloon. We are simply imparting the charges on the surface of the balloon. बलून के सरफेस के ऊपर हम चार्ज भेजते हैं घर्षण करके करके, बराबर. और चार्ज होने के बाद फिर वो वॉल पे रखते हैं और वॉल के साथ वो चिपक जाता है. तो इसका मतलब वॉल के साथ जब वो बलून चिपकता है मीन्स देयर इज द अट्रैक्शन बिटवीन बलून एंड वॉल. बराबर की नहीं? देयर इज attraction force between balloon and wall. या attraction है means what? जो बलून में जो चार्जेस है और वॉल के अंदर भी कुछ चार्जेस है तो वो कैसे है? अपोजिट है. पॉजिटिव यदि वॉल में है तो नेगेटिव बलून में है. मीन्स देयर इज द अट्रैक्शन फोर्स. सो वी आर सिंपली imparting the charges on the surface of the balloon by wiping that object onto our hairs, right? तो अपोजिट चार्जेस आते हैं इसलिए वो बलून वहां पे चिपक जाता है. सिमिलरली रबर रॉड, एबोनाइट का रॉड लेते हैं हम या रबर रॉड लेते हैं, फर के साथ यदि हम उसका फ्रिक्शन करते हैं, बराबर, और बाद में यदि हम कागज के टुकड़ों के पास लेके जाते हैं तो देयर विल बी अट्रैक्टिव फोर्स, राइट. तो पॉजिटिव चार्ज जो रहता है फर में वो हमारे रबर रॉड में चले जाता है
बराबर, तो इट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। फिर कागज के टुकड़े के पास लेके जाते हैं तो अट्रैक्ट होते हैं, मींस देयर इज द अपोजिट charges, right? Attraction force is there. So like this, here is also the charges are there, okay? And these are the stationary charges. ये खुद होके मूव नहीं होते हैं, बराबर, ये stationary charges है, fixed charges है ये। So charged by friction, okay? So umber and cloth, बराबर, तो ये charges है। ये जब हम एक दूसरे के ऊपर वाइप करते हैं, चार्ज ट्रांसफर टेक्स प्लेस, ओके। अभी देखिए यहाँ पे दो पॉजिटिव चार्ज है, ये और दो निगेटिव चार्ज है। क्लॉथ में कितने हैं? 3 पॉजिटिव चार्ज है, 3 पॉजिटिव चार्ज है।